Manish Kalra, the first question that I have for you is, चाहे filmmakers हो, चाहे audience हो, चाहे content creators हो, production houses हो, आप सबको खुश कैसे करते हैं? इतना सारा खुश कैसे कर सकते हैं? How dare you? मैं एक ही आदमी को खुश रखना चाहता हूँ. वो मेरा consumer है, audience है जो देखती है. And in the process, if we create good content for them, we are able to cater to everyone, which is the great producers, actors, and everyone. So I think it's a tough job, but I'm at it. Thank you. Very effortless at the tough job. What factors, Manish, do you consider when deciding between acquiring or producing shows for ZEE5? I think it's very simple for us to define. If the content is good, the plot is good, it will connect with our audience. It doesn't matter to me if I'm acquiring or producing. It has to connect with the audience, period. Now, वो कैसा plot है, उसमें कितना intrigue है, कितनी layers हैं, किस तरह के actors को हम plan कर रहे हैं, तो basis that we decide. But the framework remains same. It's just about the content, nothing more. Firstly, thank you. Yay. And thank you everybody for coming out today and celebrating 11/11 with us. हमने पिछले I think 2-2.5 साल से हम लोग इस journey के ऊपर हैं. I think OTT came and became a unifier. You know, एक तो हमारे पूरे देश को जोड़ दिया. हम लोग अपने ही देश में जो हम मलयालम कंटेंट, तमिल, तेलुगु, हिंदी, पंजाबी, एक अलग लेयर ऑफ पेनिट्रेशन हुआ. इंडिया बहुत बड़ा है एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इंडिया. देयर इज सो मच एंड देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन एक्चुअली. सो आई एक्चुअली सी द OTT प्लेयर्स हैव कम इन एंड यूनाइटेड अस. ये भारत बना है जब हम अपना कंटेंट आपस में शेयर कर पा रहे हैं. एंड आई फील इट्स ऑल्सो डेमोक्रेटाइज्ड. You know, here we are with some incredible talent in the room, with amazing writer-directors, and here we are with Umesh sir, with our Raghav, Dhairya and Kritika. I feel like OTT has expanded and allowed all of us to do more, tell more, besides of course the physical length. मतलब एक तो हम और लंबा, हम वैसे भी लॉन्ग फॉर्मेट में थे, अब हम 8 एपिसोड्स बना रहे हैं. Besides, of course, we've been able to do more. I just think that it is democratized, unified, and expanded the market open, and especially for people who are outsiders, especially for people who are coming into this industry with dreams, today have a chance to come, shine, and, you know, conquer. I think time travel करके मेरे को भी समझना पड़ेगा. मैंने भी so I go by कि सचिन अचिंत जो रखना है रखो, because no one understands why it's Sachin. So yeah, it's a mystery that even I'm trying to get answer to. So I think kudos to our filmmakers. I think all we try to do is be honest to the stories. I mean, it's always about the stories, what stories excite us. And I mean, the moment you are honest with the story and the storytelling, I think they always travel. So, and again, I mean, kudos to the OTT that now, you know, we have the platform where we can experiment a lot more. Right. We can play with the formats, play with the length. So, I think it's a great time to make content. थोड़ा मुश्किल सवाल है कि ये कैसे हुआ, क्योंकि जो टाइम का कॉन्सेप्ट है वो मतलब हमारी इंडियन फिलॉसफी में अगर आप अद्वैतवाद भी उठाते हैं तो वहीं से टाइम और स्पेस के बारे में बहुत गूढ़ चर्चा और बहुत यू नो डिबेट्स हुई हैं. सो दैट होल कॉन्सेप्ट ऑलवेज यूज्ड टू एक्साइट मी कि इन टर्म्स ऑफ फिलॉसफी इज देयर समथिंग बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, लाइक वी से अनादि, ना जिसका शुरुआत है ना जिसका अंत है. सो यू नो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वी आल्सो कॉल्ड द हार्ड
क्वेश्चंस ऑफ कॉन्शियसनेस, दे ऑलवेज सॉर्ट ऑफ इंट्रीग्ड मी। एंड उसके साथ दूसरा ये था कि थ्रिलर और मिस्ट्री बनाने का बड़ा शौक था। तो यहाँ पे अचानक ये जो दो बड़े जिसको कहते हैं भयंकर कॉन्सेप्ट जो हैं, ये एक साथ मिल गए और इसको रचने में फिर बहुत बहुत मज़ा आया। तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस कि किस तरह से फिलॉसफी और थ्रिलर, दो डिफरेंट तरह के जॉनर जिनमें एक्साइटमेंट है, डेप्थ है, उनको किस तरह से एक अच्छी सिंपल सुलझ कहानी के रूप में प्रस्तुत करें। सो इट वाज अ ग्रेट सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस फॉर मी। I think we are living our dream, right? I mean, the fact that we get to tell stories and we get to work with the amazing talent around us, I mean, that itself, you don't need a bigger motivation than that. And again, I mean, the fact that in today's time, I think you can change the world, you can show the mirror to the world by storytelling. We are in the business of audio visual. I don't think we need any other motivator than just the excitement of, you know, the space that we are in. You make it sound really joyous, guys. Like everything that you've spoken so far. It is actually. Otherwise, it's maddening. I mean, why would anyone be in this line if it's not joyous? I mean, it is maddening. It is insane to be in this line and to be in this business. But the joy of telling stories is what keeps us going. इतने बड़े बड़े नाम हैं और इतना अच्छा काम करने वाले हैं, उन लोगों के साथ रिलेशनशिप, एक अच्छा रिलेशनशिप तभी मिलता है जब आपकी आवाज़ सुनी जाती है। और कहाँ कौन से रिश्ते में, कौन से रिलेशनशिप में आपको वो रिस्पेक्ट और वो स्पेस दी जा रही है, वो बहुत जल्दी पता चल जाता है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि मैं कुछ चीज़ सोचता हूँ और मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, लेकिन वही चीज़ जब मैं गुनीत को या अचिन को सुनाता हूँ तो उनको उसमें कुछ एक चीज़ नज़र आती है। जो हम लोगों ने फिल्म करी थी पगलैट एक साथ, उसमें यही हुआ था कि मैं सुनाने कुछ और गया था और गुनीत अमेरिका जाने वाली थी, यहाँ से पूरी दुकान उठा के अमेरिका जा रही थी। तो ऐसी बातों बातों में चाय पीते पीते पगलैट का ऐसे ही एक थोड़ा सा कहानी सुना दिया। जितना एक्साइटमेंट मुझे नहीं हो रहा था उससे कहीं ज़्यादा गुनीत को हुआ। एंड ये जंप करती हैं सचमुच में, ये सचमुच में कूदती हैं। 5 feet nothing, jumping in the office. So ऐसे अच्छे लोगों के साथ नियत अच्छी होनी चाहिए, तो वो आपके काम में रिफ्लेक्ट करते हैं, तो आपकी नियत अच्छी होगी। और इसी संदर्भ में हम लोग को क्या डर लगता है, क्रिएटिव आदमी को ये डर लगता है कि यार ज़्यादा नुक्ताचीनी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। सो आई हैव गॉट सच वंडरफुल प्रोड्यूसर्स एंड आई मस्ट से ZEE5 वाज एक्सीलेंट, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मतलब उन्होंने आकर के इतनी हौसला अफजाई की है और जो भी कहा है इतना सटीक बोला है दैट इट वाज सच अ वंडरफुल रिलेशनशिप। अदरवाइज लोग डरते हैं कि यार फीडबैक देने वाले आ गए, फिर से उंगली करेंगे। लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि ये सचमुच इतनी तारीफ कर रहे हैं क्या, और सचमुच मतलब ये दिल से इनको अच्छा लग रहा है, और ये प्रेशर कर रहे हैं कि आपने दूसरे वाले एपिसोड एडिट करके जल्दी बताओ कहानी कहाँ जा रही है। सो ऐसे कमाल के लोग मेरे ख्याल से भाग्य से ही मिलते हैं। एंड आई थिंक कुछ 11-11 का चक्कर है। इट्स अ एंजेलिक नंबर एंड इट्स अ नंबर ऑफ सिंक्रोनिसिटी। जब अंदर की चीज़ और बाहर की चीज़ एक साथ मिल जाती है तो मैजिक होता है। तो मेरे ख्याल से आई एम ब्लेस्ड विद 11-11। च्यवनप्राश भयंकर च्यवनप्राश भयंकर च्यवनप्राश नहीं बस हो रहा है यार, फ्लो में हो रहा है जो हो रहा है, और थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा आशीर्वाद है, थोड़ा सा जो मेरे सब बड़े लोग हैं उनका योगदान है मेरी लाइफ में, उससे हो रहा है। करने लगी हूँ because this is a wish come true. This moment, sitting surrounded by such talented, wonderful people, this is a wish come true. From जहाँ से मैं आई थी, जब मैंने शुरू किया था, कभी बचपन में सोचा नहीं था कि एक्टर बनना है, उसके बाद भी ये सब करने को मिल रहा है, और इतने अमेजिंग लोगों के साथ काम करने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है. It can only be, you know, something magical. Yeah, I think thank you for your kind words. Very sweet of you. It was very simple. I read the script and I was like, finally. Yeah. Like, this is a part that every actor waits for in their life, and especially for somebody who's still in his nascent stages, starting out, finding his feet. So when I read the script, I was like, yes, this is it, because, yeah? So yeah, simple. I read the script and I was like, finally, this is it. This is what every actor waits for. This part, huge responsibility.
Because, and again, I want to thank my producers, Guneet, Achin, Karan, Apurva, and especially Umesh sir, for, you know, trusting me with this part. It's a risk on their part for trusting somebody who's starting out with a humongous part in a humongous project. And thank you, Umesh sir, for really, you know, taking me under your wing. He's such a gem of a person. I absolutely love him. And it's been a wholesome, satisfying journey. स्कूल में लड़कों से बातें करते रह गए और सब बात करते थे, भाई आज इधर मिलना है, आज उस चाय की टपरी पे मिलना है, आज वहाँ मिलना है। बेसिकली फुटबॉल मैच है तो फ़ोन पेजर्स, पहली बार जब पेजर आया था मुझे याद है अभी भी कि वो फर्स्ट टाइम मेरे आई थिंक मेरे फादर एक लेके आए थे घर की, एक देख पेजर आया है। तो वो जितना जैसे नवाज भाई ने रिएक्शन दिया था ना पेजर के बाद, वो मैंने भी दिया था घर में जीन्स में डाल के। तो वो मुझे याद है कि कम्युनिकेशन जो फ़ोन से कर रहे थे वो, और वो गोल घुमाने वाले फ़ोन होते थे हमारे पास, उससे ड्रंग ड्रंग मिलाते थे और बस वो याद है हमें। What about the phone calls right now? क्या आप लंबे समय तक बात कर सकते हैं? Are you a person? मैं बिल्कुल फ़ोन में नहीं, मुझे पसंद नहीं। मैं 4-4 दिन तक मैसेजेस नहीं देखता हूँ। तो मेरी ये एक बहुत कंप्लेन है लोगों की मेरे से, जो मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ और आगे करता रहूँगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।